اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ خیر کرے، ماسی نذیرہ آج صبح صبح ادھر آ رہی ہیں۔ دونوں عورتوں نے ایک ساتھ ادھر دیکھا۔ اتنے میں ماسی نذیرہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے قریب آ کر رکی۔ کیا ہوا ماسی، اتنی صبح کہاں سے آ رہی ہو؟ ارے نہ پوچھو کیا ہوا ہے، سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ ماسی نذیرہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیسی قیامت ماسی؟ رانا آفاق کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا؟ دونوں عورتوں کے حلق سے چیخ نما آواز نکلی۔ ماسی اللہ کا نام لے، اتنی صبح اتنا بڑا الزام؟ تجھے پتا ہے رب سونا کتنا ناراض ہوتا ہے کسی پر بہتان لگانے پر؟ پہلی عورت نے ذرا سنبھل کر کہا۔ لو بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، میں خود دیکھ کر آئی ہوں۔ ماسی بس کر، بھائی آفاق کی بچیاں کتنی نیک اور با حیا ہیں، پورا محلہ جانتا ہے، نماز روزے کی پابند ہیں، اپنے ہاتھوں میں تو پلی ہیں، اسکول کالج عبایا میں گئی اور نظر جھکا کر گئی، اور تو کیا بکواس کر رہی ہے صبح صبح؟ دونوں عورتوں کو شدید برا لگا تھا۔ تم لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، خود جا کر دیکھ لو، صفے ماتم بچھی ہوئی ہے رانا آفاق کے گھر میں۔ ماسی چپ کر جا، یہ ساتھ والی گلی میں تو آفاق کے بھائی کا یعنی طاہرہ کا سسرال ہے، طاہرہ کے منگیتر نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ پہلی عورت نے پھر دبی آواز میں سمجھانا چاہا تھا، لیکن چنگاری لگے تو آگ تو بہت دور تک جاتی ہے۔ میں وہی تو بتا رہی ہوں، عاصم کے چھوٹے بھائی فاخر کے ساتھ ہی تو بھاگی ہے طاہرہ۔ ماسی نذیرہ لگتا ہے تو رات کو کوئی خواب دیکھتی رہی ہے اور اب وہی ذہن میں اٹک گیا ہے۔ بھائی آفاق کی دونوں بیٹیاں اپنے تایا کے گھر میں جا رہی ہیں بہا کر، اور ایک ہفتہ ہی تو رہتا ہے شادی میں۔ طاہرہ کیوں جانے لگی اپنی چھوٹی بہن کے منگیتر کے ساتھ؟ اور کتنے سالوں سے تو رشتہ طے تھے، اور اب شادی سے ایک ہفتہ پہلے گھر سے بھاگے گی؟ طاہرہ تو اپنے نام کی طرح پاکیزہ ہے، ایسے الزام نہیں لگاتے ماسی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹنے ہی والی تھی جب رانا آفاق کے بڑے بھائی رانا آفتاب اور ان کی بیوی راحلہ آفتاب روتے ہوئے رانا آفاق کے گھر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ ماسی نذیرہ کیا تو واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ دونوں عورتیں حیرت سے رک گئی۔ میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ماسی نذیرہ بگڑ کر بولی، لیکن وہ دونوں حیرت سے نہ نکل پا رہی تھی۔ بھائی میں تو صاف بات کروں گی، شادی تو رانا آفاق اور رانا آفتاب کی اکٹھی ہوئی تھی، بیویاں بھی دونوں کی بہنیں تھیں۔ آفتاب کے ہاں پہلے عاصم آیا، پھر درمیان کے 2 بچے فوت ہو گئے، پھر نازلی اور آخر میں فاخر، جبکہ رانا آفاق کی شادی کے 10 سال بعد اولاد ہوئی۔ پہلی بیٹی طاہرہ جو فاخر کی ہم عمر تھی، اس سے چھوٹا اطہر اور اس سے چھوٹی فارہہ۔ آفتاب کی نازلی اطہر کو بیاہی گئی۔ اکلوتے بیٹی کی خوشی آفاق نے پہلے کر لی۔ کیا ہوا جو نازلی تھوڑی بڑی تھی اطہر سے؟ رہ گئی بیٹیاں تو بڑے کو بڑی دے دی اور چھوٹے کو چھوٹی۔ اب آفتاب کا بڑا بیٹا عاصم طاہرہ سے 10 سال بڑا ہے، جبکہ فاخر ہم عمر۔ ممکن ہے وہ اپنے ہم عمر کو پسند کرتی ہو، جب کوئی راستہ نہ ملا تو گھر سے بھاگ گئے ہوں۔ ماسی نذیرہ نے جیسے دل میں سوچا منو ان وہی بیان کر دیا۔ لیکن ماسی میرا دل نہیں مانتا، طاہرہ تو بہت نیک بچی تھی، آنکھوں کے سامنے رہی ہے، معصوم چہرہ، معصوم باتیں، پھر اپنی بہن کا گھر کیوں برباد کرے گی؟ جبکہ میں نے سنا تھا کہ فاخر فارہہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ رب سونا خیر کرے، کیا زمانہ آ گیا ہے، نہ باپ کا سوچا، نہ تایا کا، اور نہ ہی بہن کا۔ شکل سے شریف دکھنے والیاں ایسے کرتوت کی نکلتی ہیں، سارے رشتے برباد کر کے گئی ہے۔ جہاں کچھ دیر پہلے طاہرہ کی پاکیزگی کی باتیں ہو رہی تھی، اور وہیں برائیاں ہو رہی تھی۔ بتا کہاں گئی ہے اور کیوں بھاگی ہے گھر سے، ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ رانا آفاق کا بے بسی اور غصے سے برا حال تھا۔ بے بسی میں ان مردوں کا عورتوں پر ہی بس چلتا ہے۔ ابو جی مت مارے امی کو، انہیں بھی آپ کی طرح کچھ نہیں پتا۔ رانا آفاق نے ایک تھپڑ کھینچ کر فارہہ کو دے مارا، ان کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ پھر تجھے پتا ہوگا، ہر وقت ایک ساتھ ہوتی تھی۔ رانا آفاق سرخ انگارہ آنکھیں لیے فارہہ سے پوچھ رہے تھے، دیکھ فارہہ، تیرے باپ کی عزت تیرے پیروں میں پڑی ہے، مجھے بتا دے کہ وہ کون سے شہر گئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے طاہرہ کی شادی فاخر سے ہی کروں گا، اور تو جس سے چاہے گی۔ کارڈ بانٹ دیے گئے ہیں، 1 ہفتے بعد مہمان آ جائیں گے اور تیرے باپ تایا کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ 40 سال کی کمائی ہوئی عزت لمحوں میں لٹ جائے گی۔ رانا آفاق بے بسی سے رونے لگے تھے۔ فارہہ ان کے قدموں میں گر کر رونے لگی، ابو جی مجھے کچھ نہیں پتا، آپا نے ایسا کیوں کیا، وہ تو عاصم بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت رانا آفتاب اور ان کی بیوی راحلہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آفاق یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچوں نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے تھے، جبکہ راحلہ بیگم اپنی بہن رضیہ کو
संभालने लगी। आसिम की आंखों में तो खून उतर आया है। पुलिस को फोन कर दिया है, जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएं। सारे दोस्तों को इधर उधर भेज दिया है। जवान बेटी की लाश देखने की मुझ में हिम्मत नहीं। तुम आसिम को समझाओ अपने भाई से इंतकाम ना ले। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी बात तो सालों से तय है। फाखिर की इसरार पर ही फारहा को मांगा था और ताहिरा आसिम का झुकाव भी एक दूसरे की तरफ था। ताहिरा को तो कभी फाखिर से मजाक करते नहीं देखा, कहाँ ये इंतहाई कदम उठा लेना। बात कुछ और है। वो बहन के आंसू साफ करते हुए बोली, ये 2 खत उन दोनों के बेडरूम से मिले हैं। राना आफ्ताब ने गुस्से से राहिला बेगम की तरफ वो खत फेंके जिस पर लिखा था, मैं यानी फाखिर और ताहिरा अपनी मर्जी से घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमें तलाश करने की कोई कोशिश न की जाए। यही 2 लाइनें ताहिरा ने लिखी थी। हैरत की बात ये थी कि वो घर से कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय एक तस्वीरों के एल्बम के। आसिम धाड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आसमान निगल गया है उन्हें। किसी को कुछ ना भी पता हो, उसे तो सब पता होगा। आखिर उसके यार के साथ भागी है उसकी बहन। आसिम की आंखों में अंगारे जलने लगे। उसने बालों से फारहा को पकड़कर खड़ा किया था। बता कहाँ है जो हमारी इज्जत की धूल उड़ाकर गई है? फारहा ने आंसू से लबरेज आंखें सख्ती से बंद की। अनमोल करने वाला बेमोल कर गया था और उसकी बहन ताहिरा अपने अमल से इन सब को बदनाम कर गई थी। फारहा खुद बता दे, नहीं तो मुझे उगलवाना आता है। आसिम का सख्त हाथ फारहा के गाल को सुर्ख सुर्ख कर गया था। आसिम को आज तक किसी ने भी इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था, लेकिन चोट शायद शदीद थी, इसलिए वो इस कदर मुश्ताल था। हाँ, ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, लेकिन ये बात उन्होंने कभी नहीं बताई। और रही बात फाखिर की, तो वो मुझसे मिलने के लिए इसरार करता था, लेकिन मैं अब्बू के डर से कभी नहीं मिली। तारीख वाले दिन भी उसने सख्ती से कहा था कि अगले दिन ताहिरा आपी और खाला को बाजार भेज देना, मैं आऊँगा। मगर मैंने डर के मारे आपा को बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं फाखिर को समझा दूंगी। फिर उस दिन आपा की बजाय मैं और अम्मी बाजार चले गए। बाद में फाखिर आया था। आपा ने मुझे इतना ही बताया। फारहा ने रोते हुए सारी तफसील बता दी। इसका मतलब है जरूर फाखिर के पास ऐसी बात थी जिसने ताहिरा को घर से भागने पर मजबूर किया। लेकिन कौन सी बात? राना आफ्ताब बोले, वो बात भी यही हमें बताएगी, इसको पता है सब। आसिम ने एक बार फिर फारहा को झंझोड़कर सामने किया। वो शिद्दत से रोने लगी। आसिम भाई, मुझे बस इतना ही पता है। आसिम ने पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का एक और थप्पड़ फारहा को मारा। वो दूर जा गिरी। आसिम, तुम भूल रहे हो, भगा कर ले जाने वाला तुम्हारा अपना भाई है। आसिम ने दोनों मुठ्ठियां सख्ती से बंद की। यही बात मेरे तन मन में आग लगा रही है। मेरी मंग को, मेरी इज्जत को मेरे भाई ने लूट लिया। मेरी गैरत पे ये बात ताज़ियाने लगा रही है। मेरे जिस्म में खून के शरारे फूट रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, जिस तरह उसने मेरी जिल्लत की है, मेरी इज्जत की धूल उड़ाई है, मैं जब तक उसके सीने में इंतकाम की गोलियां नहीं उतारूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आसिम की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो सब पर एक नजर डालकर बाहर निकल गया। वहाँ मौजूद हर शख्स को सांप सूंघ गया था। 2 ही तो भाई थे। आसिम का गुस्सा अगर ठंडा ना हुआ तो एक बेटा मारा जाएगा और दूसरा सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाएगा। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी वो कैसे जी पाएंगे? सबके दिलों पर हाथ पड़ा था। बाज़ औक़ात गलती कोई और करता है और सजा बहुत से लोगों को बहुत सारे साल भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही कड़ा वक्त राना आफ्ताब के खानदान पर आया था। बेटा अपना था, वो किसका गरीबान पकड़ते। सजा का सोचते तब भी अपना ही जिगर कटता। बेबसी से दोनों भाई दीवारों से सर मार रहे थे। कहते हैं कि गुर्बत के दिन आ जाएं तो सब्र शुक्र से कट जाते हैं, लेकिन अगर जिल्लत के दिन आ जाएं तो ना ही सब्र नेकी बनता है और ना ही शुक्र किया जाता है। बस एक बेरहम अनदेखा खंजर होता है जो पूरे खानदान को अंदर ही अंदर कत्ल कर देता है। 8 दिन पर लगाकर उड़ गए। आसिम भूखे शेर की तरह खूनख्वार फिरता। मेहमान आने शुरू हो गए थे। दोनों भाइयों की गर्दनें झुकी हुई थी। राहिला बेगम और रजिया बेगम तो होश से ही बेगाना हो रही थी। अतर और नाजली थे जो भांत भांत के मेहमानों को संभालने में हलकान हो रहे थे। आसिम सिरे से गायब था और फाहरा को बिल्कुल चुप लग गई थी। वो खाली नजरों से सब देख रही थी। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। किसी औरत के मुंह से निकलने वाली चिंगारी राना आफ्ताब के कान में भी पड़ी।
अरे बड़ी भाग गई तो क्या हुआ, छोटी तो है ना। इस तरह की जिल्लत के बाद और तो कोई बहाने आएगा नहीं। घर की बात घर में रह जाएगी। फिर बेटा भी तो भाई के खून का प्यासा हुआ है। इस तरह से उसका गुस्सा भी झाग बनकर बैठ जाएगा। राना आफ्ताब ने ये सब बहुत गौर से सुना था और एक लम्हे में फैसला किया। आसिम इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। देख आसिम, ऐसा करने में हमारा बहुत भला है, बल्कि फायदा है। एक तो आफाक पर ये एहसान करके उसको दबा कर रखेंगे क्योंकि हमारी नाजली उनके घर ब्याही है। दूसरा, निकाह करके तुम फारा से वो सारा राज उगलवा सकते हो जो वो ताहिरा के बारे में जानती है। तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा और लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। ये सारी बातें आसिम की समझ में आ गई थी। फारा से किसी ने नहीं पूछा। अतहर आफाक ने दबा दबा सा एहतजाज किया था कि ये सब ठीक नहीं। एक तो आसिम फारा से काफी बड़ा है, दूसरा वो इस सूरत-ए-हाल में फारा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था, मगर राना आफाक ने ये कहकर बात खत्म कर दी। क्या चाहते हो तुम कि दूसरी भी रात के अंधेरे में मुंह काला करके चली जाए? और राना अतहर खामोश हो गया। जैसे तैसे औरतों ने उसे दुल्हन बना दिया था। रुखसती के वक्त राना आफाक ने उसे प्यार नहीं किया था। एक ने एतबार तोड़ा था और दूसरी से भी नफरत करने लगे थे। इस दुनिया का दस्तूर रहा है, गलती कोई करता है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। इस घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी ख्वाहिशों, मोहब्बतों और एतबार को फारा आफाक वहीं छोड़ आई थी। जानती थी उसे ताहिरा की बहन होने और फाके के मंगेतर होने की सजा भुगतनी है। ताहिरा का सारा जहेज भी उसे दे दिया गया था। आसिम आफ्ताब का पूरा घर उसके जहेज से सज गया था। बस एक वही पत्थर की मूरत बन गई थी। नाजुक जज्बे और अरमान मर गए थे। वो सर झुकाए बैठी थी जब वो दरवाजे को ठोकर मारता अंदर आया था। ओह, तो इंतजार किया जा रहा है, लेकिन किसका? जहरीले लहजे का जहर फारा के कानों में उतरा। वो खुद में मजीद सिमट गई। एक से एक गिरा हुआ लफ्ज इस्तेमाल करता वो खुद में नहीं रहा था। बता किसका इंतजार कर रही थी? बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार फेंका, जेवरात नोच नोच कर उतार दिए, थप्पड़ों से चेहरा सुर्ख कर दिया। वो रोती बिलकती अपना बचाव भी नहीं कर पा रही थी। अगर तुम ये सोच कर आई हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बना कर रखूंगा, तुम्हारे हकूक अदा करूंगा, तो ये बात अभी से अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता। जितना बड़ा गुनाह उन दोनों का है, तुमने उनके बारे में सच ना बताकर इससे भी बड़ा गुनाह किया है। अगर तुम बता देती तो बच जाती, लेकिन अब तुम रोज जियोगी, रोज मरोगी। वो उसका चेहरा सख्ती से दबोचे हुए था। फाहरा की खामोश आंसुओं से आसिम के दोनों हाथ तर हो गए थे। अगर तुम अभी भी सच बता दो तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाली जा सकती है। बताओ शाबाश, कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं? फाहरा का पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, वो कहते रुकी थी और आसिम उस पर टूट पड़ा था। थप्पड़ों से ठोकरों से मार मार कर उसे बेजान कर दिया था। आसिम का गैज़ो गजब सुनकर राना आफ्ताब और राहिला बेगम दौड़ते अंदर आए थे। अंदर के मंजर ने उनके औसान खता कर दिए थे। फारा बेजान पड़ी थी। राना आफ्ताब ने बामुश्किल आसिम को पकड़ा, जबकि उस बेहोश वजूद को राहिला बेगम ने संभाला था। फारा के होंठों और पेशानी से खून निकल रहा था और भी कई जगह से जख्मी थी। उसकी हालत देखकर राहिला बेगम के आंसू बहने लगे। फारा सबसे छोटी थी और दोनों घरों की लाडली भी थी। खुद आसिम ने कितने ही नाज नखरे और फरमाइशें पूरी की थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा जिसकी जिंदगी में 30 बरस के बाद खुशी आई थी। वो भी किस अंदाज में उनका फरमाबरदार बेटा वक्त के साथ बदल गया था। राना आफ्ताब ने तकरीबन बेसुध पड़ी फाहरा को गले से लगा लिया। वो उनका सहर पाते ही और शिद्दत से रोने लगी। अब अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राना आफ्ताब ने निहायत गुस्से से उसे कहा। आसिम ने जोरदार ठोकर कुर्सी को मारी और कमरे से चला गया। अगले दिन रस्म के मुताबिक राना आफाक की फैमिली फारह को लेने आई थी, मगर आसिम ने साफ इनकार कर दिया। आसिम भाई, आप ताहिरा की सजा फारह को नहीं दे सकते। अतहर गुस्से से बोला। अतहर तुम खामोश रहो, फारह अब उसकी जिम्मेदारी है, वो ठीक कह रहा है, चलो उठो चलते हैं। राना आफाक ने कहते ही रजिया बेगम को उठने का इशारा किया, लेकिन अब्बू, मैं फारह को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अतहर का दिल अपनी मासूम बहन के लिए तड़प रहा था, जबकि राना आफाक ने अपना दिल पत्थर कर लिया था। भाई आप जाएं प्लीज, फारह ने कुछ इस लहजे में कहा था कि अतहर को अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ने ही पड़े। शाबाश, इसी तरह तुम्हें अपनी सजाओं के लिए मजबूत करना होगा। वो 2 कदम बढ़ाकर उस तक आया था। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद गेट तो क्या, सहन में भी नजर ना आओ। ना मोबाइल को हाथ लगाओगी, ना ही गली मोहल्ले की किसी औरत से मिलोगी।
बात दोहराने की मुझे आदत नहीं है, कभी भूलना मत। आसिफ ने उसे बाजुओं से सख्ती से पकड़कर कहा था और फिर धक्का देकर सोफे पर पटक दिया था। राना आफ्ताब और राहिला बेगम गुमसुम से बैठे रह गए थे। आखिर वो क्या करते, एक ही तो बेटा रह गया था उनका। राना आफ्ताब ने तो बहुत दूर की सोची थी कि फारा को अपने घर लाकर सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा। उनकी बेटी नाज़ली भी महफूज रहेगी और फाखिर भी। राना आफ्ताब इतना तो जान गए थे कि आसिम जितना भी फारा पर तशद्दुद कर ले वो जुबान नहीं खोलेगी। यकीनन बात दरमियान में कुछ और है और गलती भी अपने भाई की ही निकलेगी। मगर इनको क्या खबर कि आसिम इस फूल जैसी फारा को इतना टॉर्चर करेगा, क्योंकि उन्होंने फारा और ताहिरा को भी बाप बनकर ही पाला था। अतहर डॉक्टर था, उसकी पोस्टिंग मुल्तान में थी। लोगों के तानों से बचने के लिए राना आफाक अतहर और नाज़ली के साथ मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। वक्त और मुकद्दर ना तो किसी के हाथ में आते हैं और ना ही किसी की मर्जी से चलते हैं। मुकद्दर तो इंसानों को ऐसे चलाता है कि इंसान महलों से उठकर सड़क पर आ जाए और मोहब्बतों से खेलता नफरतों में गिर जाए। 5 साल गुजर जाने के बाद भी राना आफ्ताब और राना आफाक के घर का हर फर्द हैरत ज़दा खड़ा था। वक्त ने ऐसी शतरंज उनके साथ खेली थी कि मुकद्दर की बिसात पर खेलते मोहरे सब धूल हो गए थे। वक्त तो गुजर गया था मगर आसिम का रवैया नहीं बदला था। उसकी आंखों में शरारे फूटते रहते। ताहिरा और फाखिर का इन 5 सालों में कुछ पता नहीं चला था। यही बात आसिम की मर्दानगी और अना पर ज़र्ब लगाती थी। उसकी सोच बहुत मनफी हो गई थी, हर रिश्ते को गलत ही ले रहा था। हालांकि फारा की बेलौस खिदमत और वफा भी उसमें जरा सी लचक न ला सकी। और लोग भी कब भूलते हैं ऐसी बातों को। वो इसी शहर और गली में रहता था जहाँ सब ही ताहिरा और फाखिर को जानते थे। घर से निकलते वक्त कोई औरत ये पूछ लेती कुछ पता नहीं चला ताहिरा का, या फाखिर के मिलने जुलने वाले फाखिर के बारे में पूछने वाला तो पूछ कर अपनी राह लेता और शामत फारा की आ जाती। वो खामोशी से मार सहती रहती। राहिला बेगम हाथ जोड़ कर उसे बचाती रहती। राना आफाक ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी। उनके लिए फारा भी मर गई थी, जबकि अतहर अपनी माँ के साथ कई बार आया था, लेकिन उसे साथ ले जाने की ना ही आसिम ने इजाजत दी ना ही फारा राजी हुई। वो बहन के साथ बैठकर रोता, उसे मनाता और थक कर वापिस चला जाता। एक दिन राहिला बेगम फाखिर का कमरा साफ करने और उसकी चीजों को छूने में मसरूफ थी। वो माँ थी, उन्हें फाखिर दिन रात याद आता था। चीजें रखते वक्त एक डायरी उनके हाथ आई। वो खुद तो पढ़ी लिखी ना थी, फारा को आवाज देने लगी। फारा उस कमरे में आना नहीं चाहती थी कि आसिफ ने सख्ती से मना कर रखा था। राहिला बेगम के बार बार आवाज देने पर चली आई। जी खाला, आप बुला रही थी? फारा, देखना ये फाखिर की डायरी है, शायद इसी से कुछ पता चल जाए। फारा ने अभी डायरी खोली ही थी कि आसिम आ गया और आते ही गरजने लगा। जब मैंने तुम्हें मना किया है तो तुम क्यों इस कमरे में आई? फारा की टांगे कांपने लगी। कलाई पकड़कर कमरे में ले गया था और दरवाजा बंद कर लिया था। बाहर राहिला बेगम फरियाद करती रह गई। लातों से हाथों से उसके पूरे वजूद को नीलो नील कर दिया। जिस पर जो पहले के जख्म थे उनमें से खून रसने लगा। उसी शाम अतर आफाक चला आया। फारा की हालत देखकर उसका दिल फट गया। यार बस कर, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं? मैं भी तो नाज़ली पर तशद्दुद कर सकता था कि तुम्हारा भाई मेरी बहन को वरगला कर ले गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इसी तरह फारा का भी कसूर नहीं है। वो मर जाएगी, कहीं उसका सब्र हमारे लिए नासूर ना बन जाए। 5 साल कम तो नहीं होते। वो पत्थर तो नहीं, इंसान है। इतना टॉर्चर अगर किसी जानवर पर भी करते तो वो भाग जाता, बागी हो जाता। ये वही फारा है जिसकी हर मुंह से निकली हुई ख्वाहिश हम पूरी करते थे। उस वक्त उसमें इतना सा भी सब्र ना था, जरा सी बात पर रूठ जाती थी। हड्डियों का ढांचा बन गई है, धूल होती जा रही है। अतहर जैसे जैसे उसे याद करवा रहा था, आसिम के अंदर निदामत का समंदर बहने लगा था। अतहर उसी शाम चला गया था और उसको सोचने का मौका दे गया था। फारा ठंडे फर्श पर दोहरी होकर लेटी, गुर्दे में होने वाले शदीद दर्द से निढाल हो रही थी। दर्द भी कितनी शक्लें बदलते हैं। ताहिरा का दिया हुआ दर्द उसकी पेशानी पर लग गया था और राना आफाक की नफरत का दर्द दिल में जम गया था। शोहर का दर्द उसके अंदर बाहर से रसता था। अब पिछले चंद माह से पेट में शदीद दर्द उठता था जो उसे निढाल कर देता था और वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। पहले आजमाइश कम थी जो अब अंदरूनी दर्द ने भी जगह घेर ली थी।
आसिम बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। बार बार चैनल सर्च करता। लाशौरी तौर पर फारा पर नजर पड़ जाती, जो कंबल में लेटी जमीन पर बार बार हिल रही थी। आसिम ने कभी इसको अपने साथ जगह नहीं दी थी। अगर तुम्हें नीचे नींद नहीं आ रही तो सोफे पर लेट जाओ। फारा जो पेट पर हाथ रखे दोहरी हो रही थी, हैरत ज़दा सी आसिम को देखने लगी। वो खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए टीवी पर नजरें जमाकर बैठा था। मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ देर बाद फारा ने हैरत पर काबू पाकर आहिस्ता से कहा। लहजा भीगा हुआ था। आसिम ने चौंक कर उसे देखा। नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। वो पेशानी पर बल डाले बोला था। अब फारा उसे क्या बताती कि वो पेट में उठने वाले शदीद दर्द से निढाल है। इतनी हिम्मत ही नहीं है कि सोफे तक जा सके। पहले राहिला बेगम को बता देती थी और वो गोली दे दिया करती थी, और अब तो वो घर पर ही नहीं थी। नाजली के यहाँ बेटा हुआ था। राना आफ्ताब और राहिला बेगम वहीं गए थे और फारा की समझ में नहीं आ रहा था इस संगदिल हमसफर से क्या कहे। वो सिसकियों को अपने अंदर दबाते इसी कंबल में छुप गई थी। आसिम ने रद्द अमल के तौर पर रिमोट पटखा था। टीवी लाइट एक साथ बंद की और खुद सीधा होकर लेट गया। आसिम प्लीज मुझे कहीं से पेन किलर ला दें। रात का जाने कौन सा पहर था जब आसिम को अपने कदमों पर सिसकती फारा की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। फारा की आंखों से गिरने वाले आंसुओं से उसके पांव भीग गए थे। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगी, मुझे कहीं से टैबलेट ला दें। वो रोए जा रही थी। शायद जिस्म में उठने वाले दर्द में सब्र नहीं था। आसिम ने घबराकर बेजान वजूद को बाजुओं में समेट लिया। चलो अस्पताल लेकर चलता हूँ। शायद फारा बेहोश हो गई थी। वो उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया था। जब मरीज खत्म हो जाता है तो इधर ले आते हैं गले का तोक बनने के लिए। पहले क्या सोए हुए थे? पेशावर डॉक्टर का अंदाज सख्त था। पुलिस केस बनता है, किसने किया है इस पर इतना तशद्दुद? डॉक्टर ने फारा के जर्द चेहरे पर पड़े हुए जख्मों के निशान देखते हुए कहा। डॉक्टर तफ्तीश बाद में करना, मेरी बीवी को चेक करो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो शदीद गुस्से में आ गया था जब दूसरी तरफ से आने वाले डॉक्टर की नजर बेहोश पड़ी फारा पर पड़ी थी। इतना सीरियस मरीज है और तुम लोग यहाँ खड़े बहस कर रहे हो, जल्दी अंदर लेकर चलो। और वो पूरी रात फारा के एक्सरे रिपोर्टें, ब्लड ग्रुप और दूसरे टेस्ट करवाते गुजर गई। फारा होश में आ गई थी। उसे ड्रिप लगी हुई थी। फारा की जिद पे वो उसे घर ले आया था। डॉक्टर ने कहा था रिपोर्टें आने के बाद ही असल बीमारी का बता सकेंगे। फारा मेडिसिन के जेरे असर गहरी नींद में सोई हुई थी और आसिम उसके जर्द चेहरे पर नजरें टिकाए गहरी सोच में गुम था। उसने ऐसा क्यों किया? इतना जालिम कैसे बन गया था? क्या उस पर तशद्दुद करने की वजह ताहिरा थी? ताहिरा से उसे मोहब्बत तो कभी भी नहीं रही। हाँ, अलबत्ता निस्बत तय होने की वजह से एक खास किस्म का लगाव हो गया था। इसे मोहब्बत तो नहीं कहा जा सकता। क्या वजह थी कि मैं सब कुछ जान कर भी अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता रहा? शायद सबब फाखिर था। वो सोचते हुए खुद चौंका था। ताहिरा फाखिर के साथ भागी थी और फारा फाखिर की मंग थी। हाँ, फारा तुमसे निकाह के बाद मेरे एहसासात बदले थे, मगर अफसोस मैं इस जिल्लत पर जज्बात को सोचकर हर रिश्ते को मनफी तौर पर ले जा रहा था। बस यहीं पर गलती हुई। मेरे दिलो दिमाग पर ये बात हावी थी कि तुम फाखिर से मोहब्बत करती होगी और ये एक अजियत देने वाली सोच थी जो तुम पर तशद्दुद करने पर उकसाती थी। मैं लाशौरी तौर पर उस चीज से तुम्हें दूर रखना चाहता था जिसमें फाखिर का जिक्र होता। मेरे अंदर ये बात जड़ पकड़ गई कि मैं जितना भी तुम्हें फाखिर के हवाले से टॉर्चर करूंगा तुम फाखिर से नफरत करोगी, मगर मैं भूल गया था कि ऐसा करने से मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो फारा। आसिफ ने उसकी नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिया था और उसी पल फारा की आंख खुली थी। फारा की आंखों में खून उतर आया। डरो नहीं, अगर दर्द दोबारा हो रहा है तो बता दो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। फारा ने नफी में सर हिलाया। अलबत्ता वो अभी तक शौक थी। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ है मुझे? फारा के लहजे में सदियों की थकन थी। आसिफ ने चौंक कर उसे देखा। रिपोर्टें मिलने पर बताएंगे। फारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या हक था मैं तुम्हें किसी और के गुनाहों की सजा देता? हक तो तुम्हारा भी छीना गया। ये बात मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। मैं तुम्हारे दर्द का मदावा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे सदके ताहिरा और फाखिर को माफ करता हूँ। फारा जो साकत लेटी हैरत से आसिम को सुन रही थी चौंकी। फारा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया और तुमने साबित कर दिया। ताहिरा जैसी भी बेटी होती, तुम्हारी जैसी बावफा बा किरदार भी बेटियां हुआ करती हैं। तुमने इंतहा सब्र करके तमाम बेटियों को दाग लगने से बचा लिया। मुझे तुम पर फख्र है। फारा को लगा
درگاہ کے تمام زخموں پر مرہم لگ گیا ہو۔ میں تمہارے زخموں کا ازالہ نہیں کر سکتا فارا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ فارا میں بس بھی کریں اب۔ فارا کا نرم دل اب اپنے ہم سفر کے لیے تڑپ اٹھا۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ عاصم نے حیرت سے پوچھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں نہ انا ہوتی ہے نہ نفرت، میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ فارا نے اپنے ماں باپ کے جھکے سر کو بلند کر دیا تھا۔ عاصم نے فارا کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں اور غلطیاں بھی ساری میری ہیں۔ عاصم اس رات فارا سے معافی مانگتا رہا، محبت کا اعتبار دیتا رہا۔ وہ رات بہار بن کر اتری تھی۔ اگلے دن رانا آفتاب اور راحیلہ بیگم کے ہمراہ عطر اور رضیہ بیگم بھی آئے تھے، لیکن فارا کی پیاسی نظریں اپنے باپ کو تلاش کر رہی تھی۔ امی ابو نہیں آئے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی اور اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی ابو جی سے کہیں مرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل جائے۔ پاگل ہوئی ہو تم فارا؟ عاصم تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم سب ہیں تمہارے پاس، میں خود لے کر آؤں گا چچا جی کو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا تھا۔ وہ سب جب سے آئے تھے عاصم فارا کا یوں ہی خیال کر رہا تھا، اپنے ہاتھ سے دوا اور سوپ پلاتا تھا اور اس کی ذرا سی پکار پر بھاگا چلا آتا۔ وہ سب عاصم کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت زدہ بھی تھے اور خوش بھی۔ اطہر بھی، فارا نے آہستہ سے پکارا۔ وہ کسی کو بھی نہیں بتا پائی تھی کہ اسے اس وقت بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ سب ہی اس کے اندر اٹھنے والے درد سے بے خبر تھے۔ وہ تکیے کے سہارے نیم دراز تھی۔ کیا بات ہے فارا؟ اطہر اٹھ کر قریب آیا تو عاصم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اطہر تم اس کے پاس بیٹھو، میں اس کی رپورٹیں لے کر آتا ہوں۔ عاصم نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ اطہر وہ بھائی کا سہارا ملتے ہی شدت سے رونے لگی۔ فارا اطہر سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، آنسوؤں کا گولہ حلق میں اٹک گیا۔ اطہر بھائی ابو جی سے کہیں میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اگر وہ مجھے عاصم سے شادی نہیں بلکہ مرنے کو کہتے تو میں مر جاتی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ بے بسی سے رو رہے تھے۔ میں نے نازلی کو فون کیا ہے، وہ جیسے بھی ہوا ابو جی کو لے کر آئے گی، اطہر نے دلاسا دیا۔ بچے غلطیاں کرے تو ماں باپ انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، ان کی غلطی سدھارتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے ماں باپ کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے ہمیں اتنے پیار سے اور لاڈ سے کیوں پالا تھا؟ انہیں اپنی بیٹیوں کی پہچان کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر کیوں اٹھا لیے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگوں نے اگر پتھر اٹھا لیے تھے تو انہوں نے خنجر اٹھا لیے تھے۔ کمرے کی چوکھٹ پر رانا آفاق نے قدم رکھا تھا۔ وہ اطہر کے فون کرنے سے پہلے ہی چل پڑے تھے۔ پیچھے نازلی اور بچے، عاصم ہاتھ میں رپورٹیں لیے بے جان قدموں سے نازلی کے پیچھے آ رکا تھا۔ فارا کی کرب سے بھری آواز سب کو سنائی دے رہی تھی اور اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پر دھول اڑاتے دو نفوس اور بھی اندر داخل ہوئے۔ اپنے نادان باپ کو معاف کر دو میری بیٹی، رانا آفاق بے اختیار آگے بڑھ کر بولے۔ کمرے میں موجود سکوت ٹوٹ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے اپنی ذلت اور عزت کی تمام قیمت سود سمیت تم سے وصول کی اور تمہیں دھول ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ فارا اپنے باپ کے سینے سے لگی بری طرح سسک رہی تھی۔ ستون کے قریب کھڑی طاہرہ نے بامشکل ستون کو تھاما۔ پوچھو عاصم سے میں نے اسے کتنے فون کیے، کتنی مرتبہ تمہارا پوچھا، کتنی بار اسے التجا کی کہ میری فارا کو اذیت دینا چھوڑ دو۔ میں بس تمہارے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔ کل رات بار بار میں تمہیں خواب میں دیکھتا رہا۔ صبح اتنا پریشان ہوا کہ ان کے پیچھے ہی چل پڑا اور فارا کو بار بار پیار کر رہے تھے۔ فارا کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے جن پر وہ نرمی سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابو جی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، فارا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا تو آفاق کے سینے میں اٹھتی ٹیس ذرا سی کم ہوئی۔ عاصم کمرے کی چوکھٹ پر کھڑا دکھ سے فارا کو دیکھتا ہوا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی رپورٹیں تھی اور اس سے چند قدم دور طاہرہ کھڑی تھی، بے آواز روتی ہوئی، اور اس کے پیچھے فاخر۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان کھڑی طاہرہ آفاق دونوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ عاصم نے مجھ سے بہت پوچھا طاہرہ آپا کہاں ہے اور کیوں گئی؟ مجھے یہ تو نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ وہ کیوں گئی۔ فارا کی بات پر کمرے میں موجود سب ہی افراد چونک کر اسے دیکھنے لگے اور باہر کھڑی طاہرہ کہنا چاہتی تھی، نہ بتاؤ فارا پلیز، اب میری بے گناہی ثابت مت کرو، مجھے گناہگار ہی رہنے دو۔ 5 سال سے بہتے آنسوؤں میں اتنا درد اور خوف نہیں تھا جتنا آج تھا۔
वो मुंह पर हाथ रखकर बामुश्किल सिसकियों को रोक सकी थी और फाखिर वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ नहीं था। कमरे से आती फारा की आवाज सीने में मौजूद दिल को सुलगा रही थी, रुला रही थी। ताहिरा आपा अपने नाम की तरह आज भी पाकीज़ा हैं और कल भी पाकीज़ा थी। कभी आंखों देखा सच नहीं होता और कभी कानों सुना। फाखिर वो इंसान जिसको मुझसे मोहब्बत का दावा था, वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत में जुनूनी भी था। वो तमाम रस्म रवाज तोड़ देना चाहता था, अपने और मेरे दरमियान तमाम दीवारें तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि मैं उसके साथ होटलिंग करूं, शॉपिंग पर जाऊं, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं, उसके हाथ में हाथ डालकर पार्कों में घूमूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मैं राना आफाक थी और मुझे इस्लाम ने भी अपनी हदूद तोड़ने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसे तो अपनी जवानी पर मान था। वो मुझे शादी से पहले जेर करना चाहता था, झुकाना चाहता था। जब उसने मुझे ज्यादा तंग किया तो ताहिरा आप दरमियान में आ गई, मेरे लिए ढाल बन गई और फाखिर को लगने लगा था कि ताहिरा आपा मुझ पर सख्ती कर रही हैं और मुझे उसे मिलने नहीं देती। बस यही से गलती का आगाज हुआ। शादी की तारीख रख लेने के बावजूद अपनी बेजा ख्वाहिशात से दस्तबरदार नहीं हुआ था। उसने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया, मैं नहीं गई। उसका गुस्सा बेबसी इंतकाम में बदल गई और वो हमारे घर आ गया। उस दिन मैं और अम्मी बाजार गए थे और अब्बू जॉब पर। ताहिरा आपा ने ये सोचकर उसे अंदर बुला लिया कि वो उसे समझाएंगी, मगर वो तो इंतकाम लेने आया था। ताहिरा आपा एक नाजुक सी लड़की, वो एक भरपूर मर्द। वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी ना सकी और वो अपने भाई की इज्जत लूट कर चला गया। आसिम के हाथ से रिपोर्टें नीचे गिर गई। सब साकत बैठे रह गए, जैसे अभी तक किसी को यकीन ही ना आया हो। भला यूं भी कोई अपनी इज्जत को लूटता है? गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे अंधेरे में हो या दिन की रोशनी में। राना आफ्ताब का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। वो मरियम नहीं थी जिसकी गवाही आसमान से उतर आती, वो तो ताहिरा थी जिसे बाप की इज्जत का ख्याल भी था और बहन की इज्जत का भी। फिर वो आसिम से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत में धोखा नहीं होता। इस मुश्किल वक्त ने उन्हें जो मुनासिब लगा वही कर डाला। खामोशी से घर से निकल गई। उन्हें क्या पता था कि घर से निकलना इतना आसान नहीं होता। अपने तो कदम जख्मी किए, पीछे रह जाने वालों को भी लहू लहान कर दिया। वो घर से अकेली गई थी। मैंने उनकी डायरी पढ़ी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने शदीद गुस्से में फाखिर को फोन किया और उसे बहुत बुरा भला कहा। फाखिर ने कहा कि मैं उसे तलाश करने जा रहा हूँ, अगर वो मिल गई उसे वापस ले आऊंगा और उससे निकाह कर लूंगा, अगर ना मिली तो मैं भी कभी नहीं आऊंगा। फाखिर ने अपनी तरफ से एक लेटर लिख कर रख दिया। मैंने वैसा ही लेटर आपकी लिखाई में लिख दिया। मुझे पता था कि ताहिरा आपा अगर फाखिर को मिल भी गई तो वापस नहीं आएंगी। कमरे में मौजूद हर इंसान ही सख्ते में था। मैंने ये सब उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि हमारी इज्जतें तो बर्बाद हो ही गई थी। मेरे बताने पर ताहिरा आपा शायद बच जाती, लेकिन फाखिर शायद पुलिस के हाथ लग जाता या फिर आसिम के हाथों कत्ल हो जाता। फिर क्या बचता? ताया जी ने भी शायद यही सोचकर मेरा निकाह आसिम से करवाया था। फिर मैं कैसे अपने हाथों अपना खानदान खत्म करती, इसलिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। बस करो फारा, खुदा के लिए बस करो। बाहर खड़ा फाखिर पूरी कुव्वत से चीखा था और शिद्दत से रोता हुआ दीवार से सर मारने लगा था। कमरे में मौजूद तमाम लोग जो अब तक साकित थे, आवाज सुनकर अपनी जगह से हिल गए थे और आसिम की आंखें खुली रह गई। ताहिरा और उसके पीछे जुनूनी हालत में रोता फाखिर सबसे पहले राहिला बेगम भागते हुए आई। बच्चों की तरह रोता हुआ फाखिर माँ से लिपट गया, जबकि ताहिरा बाप और भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी थी। सभी जान गए थे कि वो बेकसूर हैं। सबने खुले दिल से उसे कबूल कर लिया और आसिम साकत रह गया। अम्मी जी, फारा से कहीं मुझे माफ कर दे, मैं अपने गलीज वजूद को सजा देते हार गया हूँ। मैंने पूरे 5 साल कांटों पर गुजारे हैं। ताहिरा से भी हर दिन हर लम्हा माफी मांगी है, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। इस मरने वाले बच्चे से भी, जिसने एक सांस भी दुनिया में लेना गवारा ना किया। फारा से कहें मुझे माफ कर दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फारा की आंखों से बहुत से आंसू टूटकर बिखरे थे। ये कैसी जिल्लत थी जो जिल्लत की आखिरी हद भी पार कर गई। फाखिर ने अपना सर दीवार पर मार मार कर जख्मी कर लिया था और राहिला बेगम उसे संभालने में नाकाम हो गई थी। आसिम के कदमों में गिरी रिपोर्टें अतर ने उठाई थी।
अम्मी जी, मैंने रब की रजा के लिए फाखिर को माफ किया। फारा का सांस अटक गया। ताहिरा ने फारा के हाथ थाम लिए और नम आंखों से कहा, मैंने भी उसे माफ किया। मजीद किसी के कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। फाखिर कुछ पल सर उठाकर आसिम को देखता रहा। वो अपनी जगह साकित था। फाखिर ने अपने दर्द को माँ से बांट लिया, एक नजर शर्मिंदगी की सब पर डाली और बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता था कि अब वो वापस आएगा कि नहीं। जिगर का कैंसर और गुर्दे खत्म हो चुके हैं। मर्ज आखिरी स्टेज पर है। आसिम, ये किसकी रिपोर्ट ले आए हो? अतहर ने बेयकीनी से उससे पूछा और उसकी आंखों से सफेद मोती बह निकले। बेबसी की इंतहा थी। कमरे में मौजूद सभी लोग एक बार फिर पुलसरात से गुजर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फारा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब उसे खुशियाँ देखनी है। फारा की माँ रोते हुए उससे लिपट गई। फारा बामुश्किल अपना सांस खींच रही थी, बंद होती आंखों के साथ। आसिम, उसने आसिम को पुकारा तो वो जल्दी से उसके पास आया था। फारा, तुम फिक्र मत करो, ये रिपोर्टें झूठ हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमने रात ही वादा किया है साथ रहने का, साथ चलने का। वो रोते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेताबी से कह रहा था, जबकि फारा के एक हाथ में ताहिरा का हाथ था। ताहिरा आपा, तुम्हारी इमानत है। ताहिरा जो आसिम की तरफ देखकर बेजान हो चुकी थी, चौंकी। नहीं फारा, और फारा के पास वक्त ही कब था। सभी पुकारते रह गए और वो चली गई। आने वाली नस्लों पर से दाग मिटाने के लिए किसी एक को तो मिटना ही था। फारा, फारा प्लीज मत जाओ, तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास आ जाओ फारा। फारा वो गहरी नींद सोया हुआ था, अचानक डर कर उठा। आसिम, क्या हुआ? ताहरा जो करीब ही सोई हुई थी, उसकी आवाज सुनकर उठी। आसिम ने उसकी आंखों को छुआ था। तुम फारा हो, तुम जाओगी तो नहीं ना? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो नीम अंधेरे में किसी बच्चे की तरह उसके हाथ थामे वक्ती सहारा मांग रहा था। फारा की मौत को कितने साल बीत गए थे, लेकिन आसिम उसकी मौत को आज तक कबूल नहीं कर पाया था। फारा से किया गया आखिरी अहद तो पूरा कर लिया था और उनकी एक 4 साला बेटी भी थी, मगर वो जाते हुए आसिम का दिल साथ ले गई थी। वो दिन भर कितना भी मसरूफ रहता, लेकिन रात को सोते हुए वो फारा को पुकारने लगता, रोने लगता और फिर फारा की मोहब्बत में इस तरह तड़पता कि ताहिरा के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। ताहिरा ने भी उससे इश्क किया था। रिश्तों पे अटी धूल को ताहिरा ने आखिरी सांस तक झाड़ना था। राना आफ्ताब के दोनों बेटों ने राना आपा की दोनों बेटियों के साथ इंतहाई सलूक किया था और इन दोनों लड़कियों ने ही अपनी इज्जत और जान पर खेलकर इस खानदान की लाज रखी थी। एक अपने हिस्से का काम कर गई, दूसरी भी अपने आप को अमर करने की कोशिश में थी। दूसरी तरफ राना आफ्ताब के बेटे भी अपनी इंतहा पसंदी का खमियाजा भुगत रहे थे, एक रिश्तों से जुड़ने के बाद भी, एक रिश्तों से कटने के बाद भी।